How many people have Ranveer Singh's bold attitude? I don't want Ranveer. Is never Ranveer. What is Ranveer? There is no Ranveer. Is only Simi. How many people have Ranveer Singh's spirit? मुझ में actually सिमी जी की आत्मा आ रही है. रणवीर सिंह सब जगह जाकर मुंह मारते हैं. Yeah, I gotta love Simi Chandok. I just love his boldness. अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो मैं अपने सारे रिस्पॉन्सेज सिमी चंडोक के अंदाज में देना चाहूंगा. No, not allowed. It is not allowed. Cut it, cut it. कभी fantastic तो कभी outrageous experimental clothes, sometimes hyper behavior and a brilliant film and a complete fun Mad Hatter. That's Ranveer Singh. रणवीर ने दिए 2015 में maximum OMG moments. आलिया भी पीछे नहीं रही, हंसी से हमारे निकाले आंसू ये कहकर कि प्याज है 7 रुपए किलो. हंसा पूरा नेशन और आलिया बनी हमारी OMG star of 2015. On this note, let's check out our stars who gave us the most oh my god moments of this year. And on top of that list is the super energetic Ranveer Singh, who has always managed to grab the eyeballs. Now, Ranveer की ऊट-पटांग हरकतों ने हमारे Oh My God segment को किया fuel in the best possible manner. AIB roast पर Ranveer went all berserk और उन्होंने की adult humor और offensive गालियों की बौछार, जिससे मिला उन्हें flack from critics. Oh my God! How many people have Ranveer Singh's bold attitude? How many people have Ranveer Singh's spirit? If you ask me, I just love his boldness. फिर भी रणवीर kept his wacky side intact. दीपिका को woo करने में he took a new high. Last year he might have followed her to the washroom, पर this year was all about open confessions. रणवीर ने किया दीपिका को पब्लिक में woo और सबके सामने कहा कि वो उनके लिए करेंगे उम्र भर इंतजार. अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को भी किया रणवीर ने स्पूक. Oh my God! Think about it, रणवीर सिंह सब जगह जाकर मुंह मारते हैं. I mean, वो बेचारे सबको किस करते रहते हैं. And I don't mean just Deepika. He goes to parties and he's so gregarious. He's so fun. He's so outgoing. वो सबको किस करते रहते हैं. And I don't just mean girls. एक बार तो उन्होंने जाकर पार्टी पे मेरे फ्रेंड को किस किया. वो बेचारा 2-3 दिन कहीं जा ही नहीं पाया because you know his cheek had a mark, a kiss mark. अपने weird floral shirts और crazy hats के कलेक्शन पर भी रणवीर ने किए grab eyeballs. रणवीर ने कहा कि he loves being unpredictable, from wearing polka dot tea suits to sometimes Ranveer sleeps in his pajamas and sometimes stark naked. Oh my God! और वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं कभी रात को पैजामा पहन के सोता हूँ and sometimes I sleep stark naked. How many people in Bollywood would actually say that? In short, रणवीर ने किया हमारा Oh My God segment rock, and we feel next year he will bring in some fresh stock. मैं तो कहूंगी ना कि रणवीर सिंह ने OMG मोमेंट सबसे ज्यादा दिए. I mean, वो मेरी नकल उतारते हैं तो but natural, he is my OMG star. आलिया भट्ट शायद बन सकती है मेल रणवीर सिंह. आलिया got into trouble this year with her boyfriend Siddharth Malhotra because of her oversized pants. Oh my God! Alia and Siddharth had a showdown this Diwali. और topic of argument था कि आलिया तुम ये पैंट नहीं पहनोगी, because पार्टी में आलिया हो गई बिजी अपनी पैंट संभालते हुए और किया उन्होंने सिद्धार्थ को इग्नोर. आलिया ने फिर एक बार डिस्प्ले किया अपना डम्ब इमेज जब उन्हें पूछा गया प्याज का भाव, and she blurted out that it's 7 rupees per kg. Oh my God! तो आलिया को अब भी नहीं है जनरल नॉलेज का ज्ञान. So be careful आलिया. 2016 में लोगों का आपके बयानों पर रहेगा ज्यादा ध्यान. Alia Bhatt lost her weight, she toned up her body, she is beautiful and she had lost her dumb tag. But ये क्या, ये सब प्याज व्याज के भाव के चक्कर में अब बेचारी आलिया को फिर से वो वीडियो करना पड़ेगा. That genius of the year फिर से डम हो गई. ओ
ओ बेल बज रही है, डम्बेल डम्बेल। तीसरी सेलिब्रिटी ऑन ओ माई गॉड इज नन अदर दैन कंगना रनौत, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को दिए खुले आम ताने एंड मेड हर अनकंफर्टेबल। ओ माई गॉड। पहले तो कंगना ने दीपिका से अवार्ड फ्री में लेने से किया इनकार, ये कहकर कि दीपिका ने नहीं किया उन्हें कभी पर्सनली कॉल। फिर उन्होंने किया दीपिका के माई चॉइस वीडियो पर भी कॉस्टिक कमेंट। I just love stars who speak boldly, and Kangana is one of them. When Deepika spoke about women empowerment and how she can have sex without getting married, Kangana ne kya jawab diya? Do you remember what she said? She said that just having sex outside marriage is not about women empowerment. Kya statement hai Kangana? Brilliant. Happy New Year. लेकिन अल्टीमेट पंगा लिया कंगना ने विद सलमान खान, ये कहकर कि सलमान के कहने पर ही उन्होंने सुनी थी स्क्रिप्ट कट्टी बट्टी की और इनडायरेक्टली थोप दिया फ्लॉप फिल्म का टोकरा सलमान जी के सर पर। ये जो हर 4-5 महीने के बाद कंगना थोड़े थोड़े पटाखे बजाती है ना, that's just not enough for us कंगना, we need this more often. प्लीज एक ट्विटर अकाउंट खोल लो ना। अगर कैटरीना कह देती कट इट तो आज इतनी परेशान ना होती। She blew the fuse in public when asked about Deepika and Ranbir. Katrina, don't make a tamasha in public. You should have just learned to cut it. रणबीर और दीपिका अपने केमिस्ट्री के केमिकल्स बिखेरते रहे और कटरीना साइलेंस में जलती रही। रणबीर और दीपिका का बहाना ये था कि बोथ द एक्स लवर्स वर बॉन्डिंग जस्ट टू प्रमोट द फिल्म, लेकिन फिल्म प्रमोट करने के बहाने रणबीर ले रहे थे दीपिका से ऑल द अटेंशन। इनिशियली उन्हें भी आ रहा था मजा विद द नॉस्टैल्जिक ट्रिप और कटरीना को मिल रही थी सजा, बट शी ग्राइंडेड हर टीथ एंड केप्ट क्वाइट। The year ended with Dilwale and Bajirao Mastani, and if anybody else got most of the attention after these movies, I think it was Katrina Kaif. And you know why, right? With all these rumors about her getting hyper about Deepika and Ranbir Kapoor. मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि रणबीर कपूर और दीपिका के बीच में कुछ है, लेकिन कटरीना ने कैसे रिएक्ट किया तमाशा के बाद, उफ उफ उफ, इतना सारा तमाशा। कटरीना कहीं पे लर्न टू से कट इट यार, प्लीज। Deepika then started taking pot shots at Ranveer and Katrina, but still, Katrina didn't say cut it. And finally, the situation reached such a point कि Katrina को होना पड़ा embarrass जब Deepika देने लगी रणबीर के बारे में national television पर intimate details, like his flatulence problem, और Deepika ने ये भी दावा किया कि रणबीर won't marry without her permission. That is when Katrina began losing the plot and her hold on Ranbir. प्लीज, जब कुछ पूछा जाता है कुछ बोलती तो हो नहीं, लेकिन फिर भी इतना सारा बोल देती हो। ओ ओ ओ। So Katrina suffered because उन्होंने दी रणबीर को आजादी and didn't object to Deepika's बयानबाजी। अनफॉर्चुनेटली जब कटरीना ऐसे रिएक्ट करती हैं मीडिया के सामने, पब्लिक में, वो पूरा अटेंशन, पूरा फोकस कटरीना पर चला जाता है, उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर चला जाता है, और रणबीर जो इतने ब्रिलियंट एक्टर हैं उनको जस्टिस नहीं मिलता और लोग उनकी पर्सनल लाइफ पर फोकस करना शुरू हो जाते हैं। Ditto with यामी गौतम, कहीं पर वो अगर कह देती पुलकित सम्राट को खरेट तो आज मे बी हर करियर वोंट बी एट रिस्क। यामी गौतम, द गोरी गोरी लवली गर्ल जो अपनी पहली फिल्म विकी डोनर से इंस्पायर्ड हैं because she is freely donating her time, her energy and her love to apparently a much married man. जी हाँ, यामी गौतम is allegedly involved with Salman Khan's sister's husband, पुलकित सम्राट। इंटरेस्टिंगली जब यामी गौतम और पुलकित सम्राट से पूछा जा रहा है कि आपके बीच कुछ है क्या, तो वो एडमिट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि वो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। नाउ इज इट अबाउट द फिल्म? आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट प्रमोशन। केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त लग रही है। हालांकि यामी गौतम stepped into the picture much later, लेकिन पुलकित के साथ बॉन्डिंग से यामी गौतम को हो सकती है फ्यूचर में प्रॉब्लम, cause भाई के बहन के पति के साथ दोस्ती बढ़ाना is not just cool but super foolish and injurious to यामी's career, क्योंकि सलमान दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं।
यामी, I think you should have just cut it because आपने पानी में रहकर मगरमच्छ से किया है बेर. You should have just been where. 2015 के बिगेस्ट रॉक स्टार के लिए एक ही नाम है विदाउट अ डाउट एंड दैट इज सलमान खान. एक तो हुआ उनका लीगल झमेला खत्म, ऊपर से उन्होंने किया बॉक्स ऑफिस पर रॉक एंड ही इज द बिगेस्ट बड़े दिल वाला. सबसे पहले तो 2015 में सलमान ने खुद को अपने पास्ट से अनशैकल किया विद द कोर्ट केस रूलिंग इन हिज फेवर, जहां फैंस को टेंशन थी कि सलमान जाएंगे पूरे 10 साल के लिए जेल के अंदर और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आ जाएगा भूचाल. द कोर्ट वर्डिक्ट समहाउ लिफ्टेड अ क्लाउड ऑफ सलमान's हेड. थिंक अबाउट इट, ये कहा जा रहा था कि सलमान अपने रियलिटी शो को होस्ट ही नहीं करेंगे. मैंने तो पहले ही कहा था कि सलमान खान अपने शो को होस्ट करेंगे एंड ही डिड एंड ही केम बैक ऑन हिज टर्म्स. इतने करोड़ों एक एपिसोड के एंड ही केम बैक, ही मेड इट अ हिट एंड वी वर ऑल वाचिंग हिज शो एंड लेट्स फेस इट, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ सलमान खान. सलमान ने 2015 में एक और बिटर पास्ट एक्सपीरियंस पर डाल दिया पर्दा. He extended an olive branch to his arch rival शाहरुख खान. सभी ले रहे थे शाहरुख खान और सलमान की दुश्मनी का मजा. I would say Salman has the biggest heart in Bollywood. जिस तरह वो लोगों को प्रमोट करते हैं, उस तरह बॉलीवुड में कोई भी किसी को प्रमोट नहीं कर सकता है. शाहरुख खान को अपने शो पर दिलवाले को प्रमोट किया. Nobody can do it with a real heart. दिल से कोई भी नहीं इस तरह प्रमोट करता है. इंटॉलरेंस के डिबेट को भी सलमान खान ने किया पंक्चर और बाकी खान से निकले वो ज्यादा स्मार्ट. जब उन्हें पूछा गया कि क्या आपको देश में इंटॉलरेंस लग रहा है, तो सलमान ने पलटकर पूछा आपको क्या लगता है. जब जर्नलिस्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो सलमान ने कहा देन डोंट क्रिएट इट, हम फिल्म प्रमोट करने आए हैं, सो लेट्स डू दैट. यानी सलमान ने दिखा दिया आमिर और शाहरुख को कि जुबान पर कंट्रोल करके भी एंजॉय किया जा सकता है बॉलीवुड में स्टारडम. आमतौर पर सलमान इतने टेम्परामेंटल होते हैं कि उनसे कोई टची क्वेश्चन पूछा जाए, ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ लूजिंग हिज टेम्पर. बट थ्रू आउट 2015 सलमान इतने पेशेंट रहे. वाह, सलमान मान गए इस टाइम तो. दिस इज नॉट द सलमान वी हैव सीन फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स. रियलिटी शो में फिर एक बार किया कॉन्टेस्टेंट के साथ हार्मलेस फ्लर्ट और फिर छाए रहे खबरों में विद हिज केमिस्ट्री विद मंदना करीमी. सो कैन वी होप दैट सलमान विल एंड अप टाइंग द नॉट एंड आल्सो एंड अप बीइंग द रॉक स्टार इन 2016. स्नैपदैट पर हमने थ्रू 2015 आपको दिए स्टार्स के इंस्टाग्राम अपडेट्स. बट सम स्टार्स वर हॉट व्हाइल सम वर लेम, टेम एंड बोरिंग. देखते हैं कौन से स्टार्स हैं जिन्हें होना चाहिए चेंज एंड हु कैन रॉक एंड स्टे द सेम. Ranveer Singh, surprise, surprise, the obnoxious man of fashion actually bored us on Snapchat क्योंकि रणवीर ने नहीं किया कुछ भी पर्सनल शेयर, nor did we get any updates about Deepika and his togetherness. रणवीर बस बिजी रहे अपने बाजीराव के प्रमोशन में. सरप्राइजिंगली रणवीर सिंह जो इतने बबली हैं, बट इंस्टाग्राम पे ना इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन, वो इतना अपने बारे नहीं डालते. रणवीर सिंह मुझे थोड़ा इतना फैसिनेट नहीं करते. आई थिंक रणवीर कैन गेट बेटर ऑन इंस्टाग्राम. Bipasha Basu, the dusky beauty, was not forthcoming about her personal stories. दरअसल बिपाशा ने खुद को नहीं पर अपने फ्रेंड्स को ज्यादा किया प्रमोट, like Rocky S and her alleged boyfriend Karan Singh Grover. बिपाशा इतनी हॉट हैं, इतनी सेक्सी हैं और पहले तो वो काफी अच्छी फोटोज डालती थी, पर अब कुछ महीनों से ऐसे लग रहा है कि बिपाशा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, इट्स बिकम मोर अबाउट हर फ्रेंड्स, इट्स बिकम मोर अबाउट अदर पीपल. बिपाशा दूसरे लोगों को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं एंड खुद को कम. सनी लियोनी ने किए पहले तो डिलीशियस मूव्स, यानी शी बेसिकली रिमाइंडेड हर फैंस कि वो हैं सेक्सी और स्मार्ट. लेकिन ग्रेजुअली जैसे साल प्रोग्रेस हुआ, सनी रिग्रेस होने लगी. होपफुली 2016 में सनी करेंगी फिर से अपने फैंस को इंस्पायर, क्योंकि हर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इज रियली इंप्रेसिव.
Sunny Leone was very good on Instagram in the beginning. I used to really enjoy following her. मैं अभी भी सनी को फॉलो करती हूँ, लेकिन अब सनी थोड़ी सी बोरिंग हो गई हैं. वो बहुत सारे क्रेडिट्स देने लग गई हैं डिजाइनर्स को and all that. We would like to see more of you, Sunny. We would like to see more of your personal moments. Please, आप थोड़े से क्रेडिट्स और डिजाइनर्स को भूल जाओ यार. It's more about you. And now on Snap That, stars who have been very, very innovative and warm and fun. सबसे पहले नाम आता है सोनाक्षी सिन्हा का. Self love, self worth, self esteem. There's a reason they all start with self. You can't find them in anyone else. ये है सोनाक्षी सिन्हा का tagline. पूरे साल में सोना. Not only introduced us to her cousins in the USA and showed us her fun-loving nature, पर अपने fashion sense से भी बता दिया कि वो कितनी है versatile. One of her recent pictures where she's wearing shorts, जो अपना music video promote करने के लिए उन्होंने डाली थी, even that was super. She has been looking very hot. She's been looking very slim. I just love the way Sonakshi has been using Instagram to entertain her fans, her followers. Sonakshi, I think you should keep this up. प्रियंका चोपड़ा ने अपने हाइपर एक्टिविटी से किया सबको एंटरटेन व्हेन शी लोडेड हर फोटोज फ्रॉम US of A to अपना मुंबई. प्रियंका अपने फैंस के साथ सब कुछ शेयर करती हैं. प्रियंका ने दिखाया है हाउ सेलिब्रिटीज कैन बी फन, वार्म एंड वेरी रियल इन 2015. Priyanka has been very, very active on Instagram. She was one of my favorites on Snap That. And वो सिर्फ अपनी प्रमोशन नहीं कर रही थी, वो अपने इमोशंस को भी डिस्प्ले करती थी. वो अपनी थकावट को डिस्प्ले करती थी, वो अपने आप को वहाँ दिखाती थी. और प्रियंका की जो इंस्टाग्राम पर कैप्शंस होती हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं. Digital media बन गया a big addiction for Bollywood in 2015. लगता है स्टार्स को जल्द ही हो जाएगा arthritis, क्योंकि whether it's Facebook, Twitter या फिर Instagram, they love self promotion और उनकी उंगलियां थक जाती हैं, लेकिन स्टार्स नहीं. 2015 में सोशल नेटवर्किंग, सेल्फीज और ब्लॉगिंग से किया हमारे स्टार्स ने हंगामा. They really milked the digital space to stay on top of their game and created various trends. Here is what they went crazy with: their Lele selfie Lele Re fever to promote themselves and their films. डिजिटल मीडिया को स्टार्स ने तो काफ़ी यूज़ किया अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए, फ्री आउटफिट्स के लिए, फ्री शूज़ के लिए, बहुत सारे ब्रांड्स को यूज़ करने के लिए. आई थिंक डिजिटल मीडिया से स्टार्स को जितना फ़ायदा हुआ है, शायद पहले कभी भी नहीं हुआ. 2015 के इस डिजिटल रेवोल्यूशन से देखने को मिली कुछ वार्म इंटरैक्शन एंड बॉन्डिंग. अगर किंग खान, काजोल, कृति सनोन और वरुण ने डब स्मैश वीडियो से किया प्रेम रतन धन पायो पर लिप सिंक जस्ट टू प्लीज सलमान, तो सलमान ने भी किया सोनम के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पॉपुलर सॉन्ग्स पर डांस एंड सून द वीडियोज वेंट वायरल. जैसे कि मैंने पहले कहा, सलमान खान ने दूसरे स्टार्स को कितना प्रमोट किया है डिजिटल मीडिया पर. सोचने की बात यह है कि क्या सलमान खान को दूसरे स्टार्स ने यूज़ किया है डिजिटल मीडिया पर. शाहरुख जो रहते हैं हमेशा updated with the latest trends, used the digital space by devising a unique plan and he started the half selfies. और इस half selfie का भी 2015 में रहा काफी क्रेज. अजय ने अपने फर्स्ट डे शूट का ब्रॉडकास्ट किया directly from the set using a new tool called Periscope और बढ़ा दिया अपने फैंस के साथ अपना स्कोप. ऋतिक रोशन used the digital space to create a bang bang dare, जहां ऋतिक ने बॉलीवुड के 30 मार खान्स को किया चैलेंज. शाहरुख ने भी किया ऋतिक का चैलेंज पूरा by doing his favorite abs exercise and posting it online. Yani, it was just not the typical boring color ads in the newspapers, but more interactive and fun side of the stars because of the digital revolution. Perhaps ये डिजिटल मीडिया की जो एडिक्शन है हमारे स्टार्स को, ऐसे लगता है कि डिजिटल मीडिया वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने बारे, खुद के बारे अच्छी बातें लिख सकते हैं, लेकिन ये कब उनके हाथ से निकल जाता है, कब भी अनकंट्रोलेबल हो जाता है. And when the trolls take a toll, you never know. It's a very two-edged sword. मीडिया को तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ट्रोल्स को नहीं. Hope your Christmas was fun and your New Year is going to be even more amazing. See you again next week. Until then, this is Simi Chandok saying cut it. Cut it.